السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے موسم گرما میں صارفین کو بجلی کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات کے ذریعے معیشت کو مثبت راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہے جہاں شدید بارشوں کا خطرہ ہے۔ امور داخلہ کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو موجودہ مشکلات سے نکالنے کے لیے سخت کوششیں کر رہی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج وطن عزیز کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ سوڈان سے انخلا کیے گئے 97 پاکستانیوں کا تیسرا دستہ جدہ سے پاک فضائیہ کے طیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب آئندہ چند دنوں میں تہران اور ریاض میں اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولیں گے۔ راولپنڈی میں 5 میچز کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 337 رنز کا ہدف دیا ہے۔ معروف اداکار منور ظریف کی آج 47ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ وزیر اعظم نے آئندہ موسم گرما میں بجلی کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات پاور ڈویژن کے وزیر خرم دستگیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاور ڈویژن کے وزیر نے وزیر اعظم کو بجلی کے شعبے میں جاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے موسم گرما میں صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بجلی کی نئی ترسیلی لائنوں پر کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ قومی اسمبلی کے ارکان راؤ محمد اجمل اور عرفان ڈوگر نے آج لاہور میں وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں ان کے متعلقہ انتخابی حلقوں کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام اور ترقی کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے ذریعے معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور انہیں آج اسلام آباد میں اصلاحات اور وسائل کی فراہمی کے کمیشن کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کی موجودہ معاشی اور اقتصادی صورتحال کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے موجودہ محصولاتی نظام میں درپیش مسائل اور چیلنجز کی نشاندہی کرنے پر کمیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ اور انہیں مستحکم معاشی ترقی کے حصول کے لیے وسائل کی فراہمی، کاروبار کو آسان بنانے اور ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ریونیو پالیسیوں میں اصلاحات کی غرض سے کارآمد تجاویز دینے پر کمیشن کے کردار کی تعریف کی۔ اجلاس میں کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر غور کیا گیا اور تمام فریقوں سے مشاورت کے بعد کاروبار دوست ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ خزانے اور محصولات کے وزیر اسحاق ڈار نے زور دیا ہے کہ حکومت توانائی کی سرکاری کمپنیوں میں مالی وسائل کی دستیابی اور کارکردگی بہتر بنانے کو ترجیح دے رہی ہے تاکہ ملک میں اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ وہ آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم ڈویژن، سوئی کمپنیوں اور پی ایس او کے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ جس قدر ممکن ہو اپنے مالی وسائل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اجلاس میں توانائی کے شعبے کے موجودہ مسائل پر غور کیا گیا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے قابل عمل تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ خاص طور پر گیس کے شعبے میں منافع کو بہتر بنایا جا سکے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہے جہاں شدید بارشوں کا خطرہ ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سمندری حدت میں غیر معمولی اضافے سے دنیا بھر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور سیلاب، قحط، غذائیت کی کمی کے مسائل شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی گزشتہ سال کی شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات اختیار کرنے اور خبردار رہنے کے لیے متعلقہ اداروں، عوام الناس اور کسانوں کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ صرف پارلیمان کو پاکستان کی آئین سازی کا حق حاصل ہے۔
पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदगान के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन एक मुकद्दस दस्तावेज है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान किसी भी किस्म की लड़ाई मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया मुल्क का एक अहम सुतून है जिसने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने सहाफ़ी बिरादरी को नसीहत की कि पार्लियामान की इज्जत और एहतराम को बरकरार रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने हज की तैयारियां तेज करने के लिए अपनी वजारत के मुलाजमीन की हफ्तावार रुखसत और यौम मजदूर की छुट्टी मनसूख कर दी है। वजारत के ओहदेदार हफ्ते से पीर तक हुज्जाज की सहूलत के लिए मौजूद रहेंगे। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। आज लाहौर में साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदेगी जबकि IMF से मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। वजीर मुमलिकत सैयद अली मोहम्मद अली शाह बाचा ने 1 मई को मेहनत कशों का दिन शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सूबाई रहनुमाओं को हिदायत की है कि मेहनत कशों का दिन मनाने की भरपूर तैयारियां करें। मोहम्मद अली बादशाह ने कहा कि मेहनत कशों से यूनियन बनाने का आईनी हक वापस लेना उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कशों, किसानों, नौजवानों और नादार लोगों के साथ है और उनके हुकूक मिलने तक हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मुलाजमों को कौमी इदारों के मुनासिब हिस्से दिए गए थे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। बड़ी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क से वफादारी और अपने आईनी किरदार की पासदारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आज काकोल में 147वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से ज़्यादा कोई चीज़ मुक़द्दस नहीं और वतन अजीज के दिफा से बढ़कर कोई फरीज़ा नहीं। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि पाक सरजमीन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ज़ाहिरी और खुफिया दुश्मनों की निशानदही की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हकीकत और अबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये बात यकीनी बनाएंगे कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ताल्लुक महफूज रहे और मजीद मजबूत हो। बड़ी फौज के सरबराह ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, सलामती और अमन हमारी सलामती के लिए नागुज़ीर है। बड़ी फौज के सरबराह ने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए तारीखी जदोजहद और हक़ खुदरादियत के हुसूल की मुनसिफाना कोशिशों में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा एक ख्वाब ही रहेगा। 13वीं मुजाहिद कोर्स, 66वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठे बुनियादी फौजी तरबीती कोर्स और 21वीं लेडी कैडेट्स कोर्स के कैडेट्स भी आज फारिग तहसील हुए। फ़लस्तीन, बहरीन, इराक और श्रीलंका के कैडेट्स भी आज पास आउट हुए। बड़ी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने परेड का मुआयना किया और नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। अकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक को एजाजी शमशीर दी गई जबकि बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर अली अमीर को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। आर्मी चीफ ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने पर पास होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत खुसूसी बच्चों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। वो आज कराची में ऑटिज्म के नफ्सियाती मरज के हवाले से मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे जिसका एहतमाम पाकिस्तान सीनियर बराए ऑटिज्म ने किया था। सेमिनार का उन्वान था ऑटिज्म के चैलेंजेस और उनका हल।
वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने खुसूसी बच्चों के हवाले से कवानीन मुरतब किए हैं और वो बच्चों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर सतह पर उन्हें लागू करने के लिए पुरअज़्म है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ऑटिज्म के शिकार बच्चों और दीगर खुसूसी बच्चों की मखसूस ज़रूरियात के हवाले से भी आगाही की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने माजूर अफराद को पैरों पर खड़ा करने के लिए एक शोबा कायम किया है, जबकि सिंध के मुतादिद अजला में खुसूसी अफराद के लिए 66 मराकज़ काम कर रहे हैं। सूडान से इनखला किए गए 97 पाकिस्तानी शहरियों का तीसरा दस्ता जद्दा से पाक फजाइया के C-130 तैयारी के जरिए जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचा। ये बात दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने आज एक ट्वीट में कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान सूडान में फंसे हुए पाकिस्तानियों की महफूज वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। जापान की हुकूमत ने जापान में पाकिस्तान के साबिक सफीर इम्तियाज अहमद को दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती को फरोग देने पर 2023 के लिए मुताद्दिद एजाज़ात से नवाजा है। इस्लामाबाद में जापान के सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि साबिक सफीर को राइजिंग सन तमगा और सोने और चांदी का सितारा अता किया जाएगा। इम्तियाज अहमद 4 मरतबा जापान में सफीर की हैसियत से 16 साल से ज्यादा अरसे तक खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने नौजवान सफारतकार से लेकर जापान के सफीर तक हर ओहदे पर काम किया है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने सदर ममलिकत की जानिब से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद और जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन को सितारा पाकिस्तान पेश किया। खालिद महमूद और राजा नजाबत को बरतानिया में तनाज़ कश्मीर को उजागर करने की कोशिशों पर सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के नस्ब लैंड की मुसलसल हिमायत हमेशा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए हौसला अफजाई का बाइस रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, सैयद बशीर अंद्राबी, ख्वाजा फिरदौस, समरुद्दा हबीब, यास्मीन राजा, खादिम हुसैन, सैयद सब्त शबीर कमी और मोहम्मद आकिब ने श्रीनगर और जम्मू में जारी अपने बयानात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर दिया है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो खित्ते में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रहनुमा फरीदा बहन जी ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत वस्ताई भारतीय हुकूमत का श्रीनगर में ग्रुप 20 के इजलास के इनेकाद का मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल के बारे में गुमराह करना है। उधर भारत ने जम्मू के इलाके में मकामी मुसलमानों को दहशतज़दा करने और तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हिंदू मलेशिया के 5000 से जायद विलेज डिफेंस गार्ड्स को, जो पहले विलेज डिफेंस कमेटियों के नाम से मशहूर थे, मुसल्लह किया और तरबियत दी। भारतीय फौज की हिमायत याफ्ता इस हिंदू मलेशिया के अरकान माजी में जम्मू के इलाके में सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर चुके हैं। सूडान में गुज़श्ता रोज जंगबंदी में 72 घंटे की तोसी के ऐलान के बावजूद फौज और नीम फौजी दस्तों में लड़ाई का सिलसिला जारी है। खर्तूम में फजाई हमलों, तैयारा शिकन तोपों और गोलाबारी की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर स्याह धुआं छाया हुआ है, जबकि लड़ाई का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। फजाई हमलों, टैंकों और तोपखाने के जरिए हमलों से खर्तूम और नवाही शहर भारी और अबरामन लर्ज उठा। फौज दारुल हुकूमत के नवाही इलाकों में RSF फोर्सेस के खिलाफ जेट और ड्रोन्स तैनात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लड़ाई के सिर्फ पहले हफ्ते में सूडान में 75,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। गैर मुल्की ताकतों की सालिसी में होने वाले हालिया जंग बंदी इतवार को आधी रात तक रहेगी। उधर जनूबी सूडान ने अमन मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश की है और फौज ने मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदे भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान ने ऐलान किया है कि तेहरान और रियाद में ईरान और सऊदी अरब के सफारत खाने बहुत जल्द दोबारा खोल दिए जाएंगे। अमीर अब्दुल्लहयान ने लबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सफारत खानों के दोबारा खुलने से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन समेत मुतादिद मसाइल पर बेहतर राबते और ताउन में मदद मिलेगी।
شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جوہری معاہدے کے مزید سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی رہنما کی بااثر ہمشیرہ کم یو جونگ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ جنوبی کوریا میں جوہری آبدوز تعینات اور جزیرہ نما کوریا میں جوہری جنگ کی مشقیں کر رہا ہے، جو خطے میں امن کے لیے تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی فون پر بحیرہ اسود کے ممالک کے اناج کی برآمد کے معاہدے پر بات چیت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے پریس آفس کے مطابق انہوں نے بحیرہ اسود کے ممالک کی طرف سے اقدام کی بہتری، توسیع اور اس معاہدے کی ضمانت دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے روس اور اقوام متحدہ کے درمیان روس کی غذائی مصنوعات اور کھادوں کو عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر عمل درآمد میں بہتری کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ ابتدائی طور پر 120 دن کے لیے ہونے والے معاہدے پر نومبر 2022 میں اور پھر 18 مارچ کو مزید 120 دن کی توسیع کی گئی۔ گوتریس اور اردوان نے شام اور سوڈان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے یوکرین میں زاپوریشیا کے جوہری بجلی گھر کے قریب فوجیوں کی تعداد میں اضافے اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق خبردار کیا ہے۔ جوہری ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ زاپوریشیا بجلی گھر کی صورتحال بجلی گھر کے تحفظ کی اہمیت اور ہنگامی نوعیت پر متفق ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کل واشنگٹن میں مذاکرات کا نیا دور منعقد کریں گی۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان متنازع نگورنو کاراباخ خطے پر ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پر جنگ کے خاتمے کے لیے 2020 میں روس کے امن دستوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ آرمینیا اور آذربائیجان برسوں کی ثالثی کے باوجود ابھی تک کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کی حد بندی اور قیدیوں کی واپسی کے مسائل حل طلب ہیں۔ شام کے ضلع حمص میں آج صبح سویرے اسرائیل کے تازہ میزائل حملوں میں 3 شہری زخمی ہو گئے۔ شام کی وزارت دفاع کے مطابق شام کے فضائی دفاع نے اسرائیل کے کئی میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ فضائی دفاع نے حمص کی فضا میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ وردک میں مارٹر بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ضلع سید آباد میں بچوں کا ایک گروہ کھلونے جیسے بم سے کھیل رہا تھا کہ وہ اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر کلولینڈ میں ایک گھر میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج راولپنڈی میں 5 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف 337 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 اوورز میں 25 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حال ہی میں تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل شعیب کھوسو نے 3 سال کی مدت کے لیے چارج سنبھال لیا ہے۔ نئے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وہ کھیلوں کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے اسپورٹ فیڈریشنز، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سمیت تمام فریقوں سے بات چیت کریں گے۔ پی ایس پی حکام کے مطابق شعیب کھوسو MBA ہیں اور سندھ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ قطر کو 2027 میں ہونے والے مردوں کے باسکٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس سے کھیلوں کی بڑی تقریبات کے انعقاد کے لیے قطر کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے۔ جرمنی 2026 میں خواتین کے باسکٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ انٹرنیشنل باسکٹ بال فیڈریشن نے کہا ہے کہ قطر نے نومبر-دسمبر میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی اور اب وہ پہلی بار باسکٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ تمام میچ دارالحکومت دوحہ کے موجودہ گراؤنڈز میں ہی ہوں گے۔ 2023 کے مردوں کے باسکٹ بال ورلڈ کپ کے لیے قرعہ اندازی آج فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں ہو رہی ہے۔ فلپائن، انڈونیشیا اور جاپان اس سال ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے، جو 15 اگست سے 10 ستمبر تک ہوگا۔
पंजाब में 22 से 30 मई तक कोयटा में मुनक़िद होने वाली 34वीं कौमी गेम्स के लिए 461 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया है। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इदरीस ने कहा है कि 9 मई को हॉकी टीम कोयटा रवाना होगी, 10 मई को दीगर टीमें रवाना होंगी। रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि उसने पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैचों की जाली टिकटें फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक न्यू टाउन पुलिस ने पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैचों की जाली टिकटें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये मुलजिमान मैचों की टिकटें ब्लैक में फरोख्त करने में मुलव्वस थे। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश है तिजारती खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और पुरअमन बनाने के लिए तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली की इस रिपोर्ट में। आज पेशावर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मौजूदा माशी मसाइल और मुश्किलात से निमटने के लिए माशरे के तमाम तबकात के इज्तिमाई किरदार की जरूरत पर जोर दिया। वफद ने गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर की ताजर बिरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया और मुल्क की सनत और रोजगार की तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बादशाह शुमाली वज़ीरिस्तान के कबायली अमादीन के वफद से गुफ्तगू करते हुए हाजी गुलाम अली ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन इलाकों की मजमूई तरक्की और अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कबायली अमायदीन बिलखुसूस इन अजला के नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन इलाकों की सयाहत, सकाफत और मेहमान नवाजी को फिरोग देकर बेहतरीन सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेटेड सेक्टर्स में मुख्तलिफ असासाजात की क्लासों में सार्फिन को डिजिटल ऑन बोर्डिंग की सहूलत फराहम करने और बार बार के वाईसी प्रोसेसिंग की जरूरत को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल की मंजूरी दे दी है। ये सेंट्रलाइज डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म SCCP के रेगुलेट करदा मुख्तलिफ असिस्ट क्लासों डिजिटल ऑन बोर्डिंग के अमल को मुतारिफ कराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के निफाज के नतीजे में सारिफिन की तफसीलात सिर्फ एक बार प्रोसेस करने पड़ेंगी। ज़रिए जराज की तजारती कमेटी JT फूड्स के ग्रेटर चाइना रीजन के डायरेक्टर ली युआन ने कहा है कि पाकिस्तान में तिल की भरपूर फसल होने की तवक्को है, क्योंकि गुज़श्ता साल बेहतर कीमत मिलने के बाद तिल की काश्त में 25% का इजाफा हुआ। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते चीन के साहिली शहर चेंगडाओ में चाइना इंटरनेशनल सिस्टम कॉन्फ्रेंस के बाद चाइना इकनॉमिक नेटवर्क इंटरव्यू में बताया कि बेहतर मौसमी सूरत हाल और कीड़ेमार अद्वियात से पाकिस्तानी तिल साफ रंगत की बदौलत बैनुल अक़वामी मंडी में मुसाबकती बरकरारी की खुसूसियत हामिल है। लियुआन ने कहा कि पाकिस्तानी तिल हर साल अक्टूबर में चीन की मंडी में आता है। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से चंद खबरें। मारूफ पाकिस्तानी मज़ाही अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की आज 47वीं बरसी मनाई गई। मुनव्वर ज़रीफ एक हमाजहत फनकार और बेहतरीन मज़ाही अदाकार थे, जिनको 70 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा में अपने फन की बदौलत भरपूर शोहरत मिली। फिल्मी दुनिया में उनके मद्दाह उन्हें शहनशाह ज़राफ़त के नाम से याद करते हैं। मुनव्वर ज़रीफ ने 321 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और स्क्रिप्ट से हटकर उनके बेसाख्ता जुमलों ने उन्हें बेपनाह शोहरत दी। उन्होंने 1961 में एक पंजाबी फिल्म डंडिया से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और फिल्म हथ जोड़ी से उन्हें शोहरत मिली। उनकी मशहूर और बेहतरीन फिल्मों में पर्दे में रहने दो, बनारसी ठग और जीरा ब्लेड शामिल हैं। उन्हें बहारों फूल बरसाओ, जीनत और इश्क दीवाना में बेहतरीन कारकर्दगी पर निगार अवार्ड दिया गया। मुनव्वर ज़रीफ 1976 में आज ही के दिन लाहौर में इंतकाल कर गए।
बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने ने सिल्क रोड इंटरनेशनल आर्ट सेंटर और मारूफ ट्रक आर्टिस्ट इंटरप्राइज फूल पत्ती के इश्तराक से लैंगफेंग चीन में एक ट्रक आर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया। ये फेस्टिवल साल 2023 को पाक चीन सियाहती तबादले की साल के तौर पर मनाने के लिए मुजवजा सरगर्मियों का हिस्सा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीन में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने बाबाए कौम, कौमी रहनुमाओं, शोहदा और पाकिस्तान के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। NNE के वाइस चेयरमैन सरपरस्त ग्रुप सिल्क रोड इंटरनेशनल आर्ट सेंटर ने पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ ताउन पर इजहार इत्मीनान किया और पाकिस्तान के मुतनव्वु सकाफत में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान ने 3 साल बाद टीवी स्क्रीन पर आने का ऐलान किया है। माहिरा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए बताया कि ड्रामा सीरियल रजिया के लिए काम कर रही हैं, जो एक निजी टीवी पर नश्र किया जाएगा। इससे कबल 2021 में आखिरी बार उनका ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे टेलीविजन पर नश्र हुआ। अदाकारा का कहना था कि उनकी नई ड्रामा सीरियल बहुत जल्द नश्र होगी। ये थी फन की दुनिया से कुछ खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन ने 5 साल बच्ची जैनब की ओपन हार्ट सर्जरी करके एक और संग मील अबूर कर लिया। जैनब दिल के सुराख के मरज में मुब्तला थी, जिसकी वजह से फेफड़ों में खून का बहाव बढ़ता था और उसे बार बार सीने में इन्फेक्शन होता था। इस सर्जरी को अंजाम देने के लिए 9 डॉक्टर्स, 2 प्रोफेशनिस्ट और 8 नर्सों की एक टीम ने कामयाब ऑपरेशन के बाद जैनब की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की और सेहतयाबी के बाद कल अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। SIUT में पहली ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए काफी मनसूबाबंदी की गई। इब्तदाई तौर पर माहिरीन अमराज कल्ब और उनके मुआविन अमले की एक टीम के जरिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया और इदारे में इस शोबे के क़याम का मकसद बैनुल-अक़वामी तर्ज का शोबा बनाना था, जहां बच्चों में पैदाइश के दौरान दिल की बीमारी का इलाज हो सके। एक नई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शमसी तवानाई से चलने वाले एयरशिप कम कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम करने वाले फ़ज़ाई सफ़र का ऑप्शन पेश कर सकते हैं। फिल वक्त तैयारों से किए जाने वाला फ़ज़ाई सफ़र कुरायर्स के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन हाइड्रोजन के मरकब से भरी हवाई लाइट बैटरियों वाले एयरशिप का इस्तेमाल रिवायती तैयारों की निस्बत 1 से 5% तक अखराज का सबब बनेगा। इन एयरशिप के इस्तेमाल का सिर्फ एक मसला ये है कि इसमें लंदन से न्यूयॉर्क तक का सफर करने में तकरीबन 2 दिन और 1 रात लगेगी और हवाई मामूल के मुताबिक रहें तो वहां से वापसी में 3 दिन और 2 रातों का वक्त दरकार होगा। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तजा से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश सिंध में जैकोबाद में 26 मिलीमीटर, बदीन में 22 मिलीमीटर, मिठी 16, रोड़ी 6, कराची गुलशन हदीद 3, खैरपुर में 2, सकरंद, सखर, बदीन, टंडोजाम और शोर में 1, जबकि बलूचिस्तान में पंजगुल में 23, बारखान में 7, कोयटा में 2, ग्वादर और कोलात में 1, पंजाब में रहीम यार खां में 2, बहावलनगर, डीजी खान, कोट उर्दू में 1, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में काकूल और कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जेलम में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 33, मरी 21, लाहौर 36, कराची 33, पेशावर 34, कोयटा 23, मुजफ्फराबाद 32, गिलगित 30, स्कर्दू 23, श्रीनगर 18, जम्मू 36, लेह 16, पुलवामा 16, अनंतनाग 15 और शोपियां में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम ने मौसम गर्मा में सार्फिन को बिजली की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत की है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के जरिए मईशत को मुस्बत राह पर गामजन करने के लिए पुरज़्म है। बड़ी फौज के सरबराह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है।
सूडान से इनखला किए गए 97 पाकिस्तानियों का तीसरा दस्ता जद्दा से पाक फजाइया की तैयारी के जरिए वतन वापस पहुंच गया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू नौमान ख्वाजा, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क साबित रजा, मुदीर खेल और तिजारती खबरें इलियास अख्तर, मुदीर साइंस फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन फहद शिराज, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।